progress.
Good morning to all. Thank you so much for all of you timely joined. And today is one of the excellent day for you all. We are keep on doing our new initiatives as well as organizing special training and all that. So, taking forward, today we have a training we organized. Present training we have organized. So, this kind of trainings will help you out how to become a director, how to become a another levels you can go. So, today is that the person, the gentleman who we are inviting you for the this special leadership skill training program. The person is, you cannot imagine how he is worked. You cannot imagine how he worked and how he started the business, how much struggles he has faced in their life, and how come he become this level and how we overcome from all these issues, all these problems, all these difficulties. People will say always, sir, it is not possible, sir, it is impossible, sir, I can't do, sir, this is little bit problems, sir. He's telling his wrong thing and other things and all that. So whenever you start the business, you have to focus what you need to do, what is important things you have to keep in your mind. The important is says that what, how, when. So these are the informations and detailed how you can become the best performer of our business. Okay, and how you will become a director. So for that, today we are organizing, and today we are inviting the person, the great gentleman. Before that, I have to talk about him. Before that, I have to talk about him. He is having 17 years experience in Tian's business total. He is 17 years experience in Tian's business, and totally he has 20 years of experience in direct selling business. He is having more than 20 years experience in direct selling business. Okay. Moreover, he joined Tianchi. After that, he achieved all the level of incomes, all the level of incomes. So if you look at our compensation plan, there is a awards. So what kind of awards? Those things he achieved. First of all, I can say he achieved BMW car, and he have loyalty award winner. He has achieved 2 times the Villa Fund award, and he achieved more than 50 countries tour. He achieved more than 50 countries tour, and he is also the national level lecturer. Okay, and he is an international lecturer also. He is an international lecturer also organized by our company, and he is getting all type of bonus. He is getting all type of bonus and all week bonuses achieving. Especially he is achieving all weeks of bonuses and all that. And his regular income is weekly 7-digit income. Okay, and he has system also. He is a founder of that also. He's a founder of that also, and he is an excellent motivational speaker. He is an excellent motivational speaker. He has a capacity of more than 2.5 lakhs distributors under him. He has a more than 2.5 lakhs distributors network in uh, his business, in our Tian's business. He has created many people, and he has changed many people's lives, and still he has a excellent office at Lucknow. It is an international level office. I have traveled with him many places, and he's a very nice and excellent person. Okay, so that is none other than our great leader, Mr. A.K. Pandey, sir, director. Okay, Mr. A.K. Pandey, sir, director in TNs. It's a top rank level. He's achieved that also. So that is what today I have to tell you all those things. So I am very happy to invite Mr. A.K. Pandey, sir. Please come on to the dais, sir. Thank you, Shivaji. Thank you. I am audible, sir.
Thank you so much, Shivaji. Thank you so much for inviting me. I am audible, sir. Sir, audio little bit increase, sir. A little bit Audio is little increase. less. Now, now it's okay. Okay, Shiva sir. Audio is okay. कितने लोग Shiva sir, your voice is not coming. Voice is very low, sir. Very low. No, my voice is okay. Actually, I'm. Yes, we have multiple devices. Everywhere is coming very nice. Your voice is very low, sir. Okay, okay, okay. Yes, sir. Carry on, sir. Carry. Yeah, yeah. Okay, thank you, Shiva sir. Thank you so much. Yes, sir. Shiva sir, can I start? Yes, sir. You can start, sir. You can start. Okay, okay. Okay, very good morning all of you. सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस कंपनी के ऑर्गेनाइज जूम पैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। एंड माई सेल्फ अरविंद कुमार पांडे, डायरेक्टर 4 स्टार गोल्ड लाइन टियान्स। और दोस्तों, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को शेयर करूंगा। इससे पहले मैं क्या था, किस तरह से टियान्स बिजनेस में आया। तो टियान्स बिजनेस में आने की जो वजह थी, इससे पहले मैं एक इंश्योरेंस एजेंट था। और उससे भी थोड़ा सा साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम एक इंटरनेशनल बिजनेस में था। और जहाँ से मैंने काफी कुछ सीखा। और सीखने के बाद हमारी मदर को थोड़ा हेल्थ के चैलेंज आए, जिनकी वजह से वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से मेरा परिचय हुआ। और सबसे बड़ी चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो चीजें मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये चीजें ना मैंने कभी सपने में सोचा था, कभी भी दूर दूर तक मेरे ड्रीम्स में भी नहीं था कि हमको ये सब मिलेगा या ऐसा आएगा। तो वो सारी चीजें फ्रेंड्स, ड्यू टू टियान्स बिजनेस और ड्यू टू कंपनी, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ जो मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पे था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और स्टार्ट किया था मैं इंश्योरेंस एजेंट से। और हमारे एक फ्रेंड दिल्ली ले जाके हमको इस बिजनेस को दिखाए, वहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को दिखाने के लिए दिल्ली लेके गए। और वो अपने किराए से जैसे तैसे करके मेरे को लेके गए। आज मैं यही सोचता हूँ कि शायद उस दिन मैं मना कर देता कि मैं नहीं जा पाऊंगा तो मेरा क्या होता। तो फ्रेंड्स, जैसे करके मैं दिल्ली गया, फिर वहां से आया। मैंने अपनी मदर का कुछ हेल्थ चैलेंज थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ था, उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने पूछा। और उस समय दिल्ली में डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी थे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। और हमने मम्मी का सारी चीजें उससे देना शुरू किया, फूड सप्लीमेंट और बीसीएम एंड हेड केयर कंप्लीट। मम्मी को उससे मैंने ठीक किया और काफी मम्मी को आराम हुआ। इवन इतना आराम हुआ कि मम्मी को डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बोला था। आफ्टर 3 मंथ उन्होंने बोला कि अभी जरूरत नहीं है, शी इज ओके। और उसके बाद मेरे को टियास के प्रोडक्ट्स पे बड़ा बिलीव हुआ। और
सबसे बड़ी चीज जब मेरे को ज्वाइन कराना था, हम कभी उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत अजीब लगता था। दैट टाइम में ज्वाइनिंग फीस इज 1200 रुपीज एंड आई डोंट हैव 1200 रुपीज। एंड थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष शर्मा एंड मोहम्मद अकरम, ही इज फ्रॉम मुरादाबाद, जिन्होंने बोथ पीपल कंट्रीब्यूट 600 एंड दे ज्वाइन मी। 600 रुपया दोस्तों दोनों लोगों ने दिया और किसी तरह से मेरे को ज्वाइन करा के वो टियांस का वही आई कार्ड जो टियांस के सभी लीडर्स को मिलता है, वही कार्ड मेरे को दिया। और हमने दोस्तों वहां से इसको स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को टियांस के बारे में बताना शुरू किया। अपने मम्मी के जो हेल्थ के चैलेंजेस थे वो सारी चीजें मैंने लोगों को बताया कि इससे ये फायदा हुआ। और हेल्थ और वेल्थ के ऊपर फ्रेंड्स हमने काम को स्टार्ट किया। धीरे 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 बहुत लाइफ में चैलेंजेस आए, बट अचानक कंपनी की एक टूर पॉलिसी आई चाइना जाने के लिए। रियल में वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। इससे पहले मेरे को पता नहीं था कि इतना बड़ा अंपायर है। और आज जो मेरे घर में पैसा आ रहा है, जो हमारे घर के सारी कंडीशन बनी, इसके बारे में ना तो मेरे अपलाइन ने कभी बताया था, ना हमने कभी सोचा था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा भी होगा। तो फ्रेंड्स लग गए, करते रहे करते रहे। और चाइना का जो टूर आया वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। दैट टाइम फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, मैं उससे पहले कभी भी ना तो फ्लाइट पे बैठा था, ना एयरपोर्ट पे गया था। इवन मैं कभी भी एसी ट्रेन में भी सफर नहीं किया था, क्योंकि हम सभी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे। बिलो पॉवर्टी लेवल था हमारा। और वहां से हम पहली बार जब फर्स्ट टाइम हमको ट्रेवल करने को इंटरनेशनल ट्रेवल मिला, जो दोस्तों चाइना का था और थाईलैंड का था। और जब मैं चाइना गया, वहां देख करके मेरा इतना विजन क्लियर हुआ। कंपनी को देखा, सारी चीजें देखी, कंपनी का बैकग्राउंड देखा, कंपनी की आर&डी देखी, सब पूरा वहां का कैंपस वगैरह घूम करके इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा। और शाम को जब कन्वेंशन का टाइम हुआ, मैं आदमी नहीं गिन के बता सकता हूँ, मेरे समझ से लाखों लोग उस कन्वेंशन में आए हुए थे फ्रेंड्स। 2008 की बात है ये। मैंने इस बिजनेस को 2007 में स्टार्ट किया था और जुलाई 2008 में मेरे को चाइना जाने का फर्स्ट टाइम मौका मिला। और वहां पे लाखों लोग आए हुए थे मेरे सामने। काफी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, यॉट फंड, विला फंड, ये फंड सब मिला। कन्वेंशन देख के मेरा एकदम से, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ। और मैंने कहा अगर दुनिया का एक भी आदमी इसको ले सकता है तो मैं भी इसको लूंगा दोस्तों। और वहीं से जब मैं वापस आया 2008 से 2010 तक हमने वर्क किया। फिर मैं 6 स्टार बना, 7 स्टार बना, 8 स्टार में 2010 में बन गया था एज पर ओल्ड मार्केटिंग प्लान। और दोस्तों जब मैं 8 स्टार बना तो उसके बाद थोड़ा सा पिकअप आया मेरा। फर्स्ट टाइम उस टाइम 1 लाख रुपए का चेक आया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, हमारा जो सबसे बड़ा ड्रीम था, हमारी पूरी फैमिली का, हमारे ऊपर लोन्स थे, हमारे ऊपर कर्ज थे, रिलेटिव्स के लोन्स थे, कर्ज थे, और बैंकों के लोन थे, कर्ज थे। तो पूरी फैमिली का एक ड्रीम था कि हमको लोन फ्री लाइफ जीना है। हमारी मम्मी, माई मदर हमारे बार बार कहती थी कि कुछ ऐसा करो कि ये पूरा हमारी लाइफ में कर्जे ना रहे। तो दोस्तों फर्स्ट ड्रीम हमने टियान से अपना वो पूरा किया। पूरे घर को कर्ज फ्री बनाया, 1 रुपए की भी कोई लाइबिलिटी किसी के नहीं, सारा पेमेंट किया। और उसके बाद दोस्तों करियर की शुरुआत हुई। स्लाइड, 1 मिनट, ओके। ये आप देख सकते हैं, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन 2007 में। इसी साइकिल के ऊपर दोस्तों मैं बीसीएम मशीन को पीछे कैरियर में बांध करके लोगों के घर घर दिखाता था, और साइकिल का ट्यूब से ही बीसीएम को बांधता था मैं। और ये आज भी मेरे पास है। और यहाँ से मैंने टियांस को शुरू किया 2007 में। और 2008 के लास्ट में हमने दोस्तों ये बाइक परचेज किया। और बाइक परचेज किया तो थोड़ा बिजनेस और बढ़ा और अच्छा हुआ। और जब मैं 8 स्टार बना तो मेरा एक 1 लाख प्लस चेक आया। और दोस्तों 8 स्टार के रैंक पे हमने अपने पूरे खानदान की फर्स्ट कार फ्रॉम टियांस, 100% इस टियांस में एक एक पाई
टियांस की लगी थी इस कार में। इस कार को मैंने परचेज किया 2009 में, और 2009 नहीं 2010 में दोस्तों। 2010 में जब मैंने ये कार परचेज किया, थोड़ा बिजनेस और इंक्रीज किया, फिर उसके बाद कई चैलेंजेस आए। आज मैं जितने भी लोग हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं, आज मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूं कि जब मैं स्टार 8 बन गया, कार परचेज कर ली और मेरी लाइबिलिटी फ्री हो गई, उसके बाद कंपनी में भी चैलेंज आया। कंपनी में सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, कंपनी के सारे लीडर छोड़ छोड़ के चले गए। कोई भी दिल्ली ऑफिस में कोई लीडर, मैं जाता था तो कोई लीडर ध्यान में नहीं था। केवल मैं था। कभी कभी हमको शेख जी मिलते थे और हम लोग मिल करके इसको धीरे धीरे करते थे, शेख साहब और हम कंटिन्यू। बोले नहीं, चूंकि देखिए मैं आपको सभी को बताना ये चाहता हूं कि मैं हेडक्वार्टर देखाया था, मैं कंपनी का बैकग्राउंड देखाया था। यहाँ इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं वो उसने हमें असर नहीं डाला। इंडिया के सभी लीडर्स को वो चीजों ने इफेक्ट किया कि आज कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी में कुछ भी नहीं है। एक दो चार प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग सरवाइव कर रहे थे। सभी लीडर्स धीरे धीरे करके टियांस को छोड़ के जा रहे थे। इवन मेरी टीम के भी, मैं स्टार 8 बना था, स्टार 7 लीडर जो कि बहुत अच्छा हमारा बिजनेस था, वो सारे के सारे लोग छोड़ के चले गए। इसलिए छोड़ के चले गए कि टियांस में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये छोड़ के चले गए। बट दैट टाइम भी मैंने एक दिन, एक महीना, एक घंटे भी अपना मिस नहीं किया। कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ईयर एक कन्वेंशन हुआ 2011 में, तो मैं वहां पे BMW अवार्ड विनर बना और मैं अपनी सेकंड कार लाया। इससे हमारा बिजनेस और आगे चलना शुरू हुआ। और 2011-12 में टियांस की बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने IDFC में अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था या क्या थे, कोई प्रोडक्ट चाइना से आ नहीं पा रहे थे। और हम लोगों के पास इतना चैलेंज था कि जो चीज मांगो नहीं है, नहीं है। इवन सप्लीमेंट्स एक भी नहीं थे, दो तीन चार पांच प्रोडक्ट बचे हुए थे। और स्टोन बचा था, हेड केयर बचा हुआ था, और BCM मशीन बची थी। फिर भी एक वीक, एक महीना भी मेरा लाइफ में मिस नहीं हुआ कि टियान से मैंने पे आउट नहीं बनाया हो। कंटिन्यू मैं काम करता रहा, करता रहा। और दोस्तों आज जो मेरी सक्सेस और बड़ी इनकम और बड़ी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है कि 17 साल में जिस दिन से टियांस को ज्वाइन किया और आज तक एक दिन भी मैं डिफोकस्ड नहीं हुआ। कंपनी में क्या प्रॉब्लम आई, टीम में क्या प्रॉब्लम आई, अपलाइन डाउनलाइन की क्या प्रॉब्लम आई, दैट इज अदर थिंग, कुछ भी मेरे को असर नहीं किया। और दोस्तों काम करता रहा। उसके बाद जब मैं सिल्वर लायन बन गया था तो मैंने ये इनोवा कार ली। फिर इसके बाद मैंने ये फॉर्च्यूनर ब्रांड न्यू TRD एक्सपोर्ट मैंने परचेज किया 2015 में। और यहाँ से हमारा बिजनेस बहुत स्टार्ट हुआ। कंपनी में भी नए मैनेजर आए, प्रोडक्ट्स आए, और धीरे धीरे टियांस का सितारा बढ़ता चला गया दोस्तों। और धीरे धीरे करके मैं पिछले 7 सालों से मैं फॉर्च्यूनर और ये सारी कारें एंजॉय कर रहा हूँ। इसके बाद जब मैं गोल्ड लाइन बना तो फॉर्च्यूनर लिया। इसके बाद मैं जब स्टार गोल्ड लाइन बना तो मैंने नई वॉक्सवैगन की ये जेटा ऑटोमेटिक कार परचेज की, जो ये भी आज मेरे पास है, ये स्टार गोल्ड लाइन पे। और नेक्स्ट कार अभी जब मैं डायरेक्टर बना हूं तो मैंने BMW iX खरीदी है। और ये दोस्तों इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज के पास है कार। अगर मैं बात करूं पूरे स्टेट में तो 4-5 कार है, और अगर मैं पूरी इंडिया में बात करूं तो 12-14 कार है। और कुछ सेलिब्रिटीज के पास है, कोई कपिल देव जी ने लिया है, नितिन गडकरी ने लिया है, रितेश देशमुख ने लिया है। और वैसा ही कर दिया टियांशी ने मेरे को भी। ये 1 करोड़ 40 लाख की कार मैं दोस्तों ड्राइव कर रहा हूँ डायरेक्टर लेवल पे। और नेक्स्ट HTD बहुत जल्दी हमारी प्लानिंग है 2025 में ऑनरेरी डायरेक्टर की। और जैसे ही मेरा ऑनरेरी डायरेक्टर रैंक ब्रेक होगा दोस्तों, तो ये मेरा येलो कलर का टियांस लिखा हुआ हेलीकॉप्टर, टियांस इंडिया में हर हाल में हर काल में बहुत जल्दी आ जाएगा। आप सभी लोग देखेंगे। और ये मेरी नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग है दोस्तों। इसके बाद ये मेरा विला, बहुत बड़ा विला लखनऊ में बनाने का प्लान है। अभी मैंने लखनऊ में अपना ऑफिस भी बनाया।
दोस्तों टियांस के पहले जिस आदमी के पास एक भी घर नहीं था, मैं रेंटेड हाउस में रहता था, आज लगभग 7 शहरों में मेरे 10 मकान हैं। 7 शहरों में मेरे 10 मकान हैं। और ये नेक्स्ट जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ये मैं रिसोर्ट टाइप का एक अपना विला बनाना चाह रहा हूँ लखनऊ के अंदर, जो कि एचडी बनने पे मेरा प्लान है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी ये मैंने कानपुर में लगभग 4000 स्क्वायर फीट का ये मेरा अपना घर, ये पूरा रिनोवेट कराया हूँ, नया कराया हूँ। और ये मैंने लखनऊ में अपनी इंडिया की बेस्ट और बिगेस्ट फ्रेंचाइजी, 3500 स्क्वायर फीट के 4 फ्लोर्स हैं। और लगभग 14,000 स्क्वायर फीट में ये फ्रेंचाइजी है दोस्तों। बहुत से लीडर्स देख चुके हैं, जिसमें अपना ट्रेनिंग हॉल है, अपना खुद का ऑफिस है, इसमें एक मेरा स्वीट रूम है, और लीडरों को रुकने के लिए 8 वीआईपी रूम्स हैं, और इसके छत पे स्विमिंग पूल है। ये लगभग 8 से 10 करोड़ का प्रोजेक्ट ये मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। ये हमारा लखनऊ ऑफिस है। और नेक्स्ट, अभी चाइना कन्वेंशन में गए थे, तो एक ड्रीम था कभी प्रेसिडेंट से मिले, और दोस्तों कई बार प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला। उनके साथ गाला डिनर, उनके साथ ड्रिंक, उनके साथ मीटिंग्स, सब में एंजॉय करने का मौका मिला। और दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे 4 टाइम ऐसे मंच पे सम्मानित किया गया। एक कन्वेंशन में 4 4 अवार्ड, ये रिकॉर्ड ऑफ 4 अचीवमेंट इन सिंगल कन्वेंशन। एक कन्वेंशन में 4 अवार्ड लेने का एक रिकॉर्ड है दोस्तों। ये टियांस की बदौलत हमको मिला। मैं इंटरनेशनल लेक्चरर बना, मेरे को विला अवार्ड मिला, मेरे को डायरेक्टर अवार्ड मिला, अलग अलग तरह के 4 अवार्ड्स हमको वहाँ पे सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। ये इस बार हम चाइना गए थे, तो प्रेसिडेंट ने हम लोगों के लिए एक विला टियांस के हेड क्वार्टर के अंदर दिया था, जिसमें हम लोग रुके थे। ये विद नेम माई विला इन चाइना, इस तरह से हम लोग वहां पे स्टे किए पूरी टीम के साथ। इस विला में हम लोग ने एंजॉय किया फ्रेंड्स। और टियांस गिव मी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड ए गुड हेल्थ। सारी चीजें दोस्तों टियांस ने नवाजा है इस बहुत कम समय में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं यंग था, अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम हमने एलआईसी को दिया था, 20 इयर्स हमने एलआईसी को दिया। बट वहां से आज मेरी जीरो इनकम है, जीरो इनकम है। और टियांस में हमने बिजनेस को शुरू किया 2007 में। और सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, 2007 से 2024 तक कोई भी साल ऐसा नहीं गया कि मेरा कमिंग ईयर, मतलब पिछले साल से कमिंग ईयर बेस्ट ना रहा हो। हर आने वाला साल पीछे साल से बेहतर रहा। ये टियांस से मुझको बहुत ही अद्भुत चीज मिली। और दोस्तों धीरे धीरे करके आज बहुत हाइट हो चुकी है। सारी जरूरतें सारी कुछ मैंने पूरा किया इससे। बच्चों का बहुत अच्छा एजुकेशन कराया, बहुत अच्छी एक लेविश लाइफ स्टाइल घर में हम लोग रह रहे हैं, चाहतों की जिंदगी जी रहे हैं, जो कि कभी हम सपने में भी, ड्रीम में भी नहीं सोचा था। और ये सब लोग अभी हमारे साथ पैनल पे जितने लोग भी जुड़े हैं, चाहे फेसबुक लाइव जुड़े हैं, ये सारे लोग इसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत नॉर्मल चीज होती है, अचीवमेंट लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। कठिन ये है, अचीवमेंट लेना बहुत आसान होता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इस पैनल के माध्यम से कि छोटी इनकम करना बहुत टफ है। चाहे वो टियांस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो। अगर आप छोटी नौकरी कर रहे हो तो बहुत कठिन से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यापार में हो तो छोटी इनकम, परचून की दुकान खोल ली, आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान पे बैठना है। टॉयलेट भी जाना है तो पूछ के जाना है, खाना भी खाना है तो उसी दुकान में ही खाना है। छोटी इनकम लेने के लिए बहुत कठिनाई पड़ती है दोस्तों। टियांस में भी जब तक लीडर स्टार 1 to 8 रहता है, स्टार 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, तब तक उसको एफर्ट बहुत डालना पड़ता है, मेहनत बहुत डालनी पड़ती है, काम बहुत करना पड़ता है, डेडिकेशन लगाना पड़ता है। स्टार 3 to 8 जैसे आप ब्रॉन्ज लाइन बनते हैं तो आपकी इनकम में थोड़ा सुधार आता है। सिल्वर लाइन बनते हैं, गोल्ड लाइन बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। आज मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं रियली बता रहा हूं, 3 3 लाइन, 3 लाइन से मेरी कैपिंग होती है अपने आप।
कैपिंग का मतलब जितने टियान्स बिजनेस में जुड़े हैं समझ पाते होंगे, एक लेग से मिनिमम $5,000 पर वीक पर लेग आता है। और मेरी 3-3 4-4 लेग, चूंकि मेरा 10 लाख का बिजनेस चल रहा है, तो मेरी 4-4 लेग से कैपिंग हो जाती है। ये हर महीने होता है। ऐसा ही अद्भुत बिजनेस है कि बड़ी इनकम करने के लिए हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बट इसका एक पिछला पहलू ये है कि जिस रैंक पे भी आप चल रहे हैं, जैसे कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई 5 स्टार है, मैं भी उस पे था। और उस समय मेरे पास भी पैसा नहीं आता था, लेकिन हम कभी मन में ये नहीं घबराते थे कि मेरे पास पैसा कम आ रहा है। हमको फ्यूचर दिखता था कि जब मैं गोल्ड लाइन बनूंगा तो मेरे घर में 5-7 लाख रुपए आएंगे। जब मैं स्टार गोल्ड लाइन बनूंगा तो 8-10 लाख आएंगे। जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो 30-40-50 लाख रुपए आएंगे। ये जो ड्रीम था आगे का। अभी दोस्तों मैं एचडी बनूंगा तो मेरा अपना टारगेट है एवरी मंथ 1 करोड़ की इनकम। ये मेरा अपना टारगेट है और 100% मैं करके दिखाऊंगा। मैं हर महीने हर पे आउट्स अपने में अपनी टीम को केवल इसलिए दिखाता हूं कि उनका भी ड्रीम बिल्ड हो, वो लोग भी अपने सपने बना सकें कि यस, अगर एके पांडे साइकिल से चल के इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए घर के दुनिया भर के चैलेंज, हमारे भी घर में चैलेंज था। मेरे घर कोई इनकम नहीं था, नो इनकम। हमारी वाइफ प्योर हाउस वाइफ हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, मदर बीमार थी, कहीं मम्मी की दवा लाना, कहीं बच्चों की फीस लाना, एलआईसी से 2-4-5 हजार आता था। कितने दिन बीत जाते थे। अगर साइकिल में ट्यूब डलवाना है तो पंचर बना बना के चलाते थे कि यार ट्यूब का पैसा आएगा, जब पे आउट आएगा तब हम ट्यूब डलवाएंगे, तब हम टायर डलवाएंगे साइकिल में। इन दिनों से भी हम गुजरे थे दोस्तों। बहुत से लाइफ में चैलेंज आए। मतलब घर का इलेक्ट्रिसिटी कट गया, पेमेंट नहीं गया। उसके बाद हीटर पे खाना बनता था, ये सब चैलेंज थे। मतलब कहते हैं ना कि लोग खाने का भी सर्वाइवल था हमारी फैमिली में। और वहां से, लेकिन अगर आपकी कुछ चीजें चेंज कर लो तो ये सब कुछ पाना दोस्तों बहुत आसान है, वेरी इजी है। डांस में भी बड़ी इनकम करना बहुत आसान है। बस केवल कठिन क्या है, आपको खुद को बदलना। और ये इंसान अपने को बदल नहीं पाता है दोस्तों। मैं सभी एलडीपी में, सभी ट्रेनिंग्स में, सभी सेमिनार्स में मैं यही चीज फोकस करता हूं कि चेंज योरसेल्फ, अपने को बदलो। और सक्सेसफुल लोगों ने क्या क्या काम किया है आप उनको देखो और उनसे सीखो, बुक्स पढ़ो। कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। एक्चुअल में आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक सक्सेसफुल हैबिट्स की बात करने वाला हूं। किसी के मोटिवेट होने से आप मोटिवेट होते हैं फिर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी वो सही आदतें आपकी लाइफ में पड़ जाती हैं तो आप कभी भी फेल्योर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करेंगे हैबिट्स को लेकर के, जो कि कंपनी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि किस तरह से डायरेक्टर बना जाता है। तो डायरेक्टर बनने का दोस्तों कोई एक मंत्र नहीं है, केवल एक मंत्र है कि आप अपनी ऐसी आदतें बनाओ जो एक डायरेक्टर की आदत होनी चाहिए। आप ऐसी ऐसी आदत बनाओ जो एक एचडी की, एक स्टार गोल्ड लाइन की, एक डायरेक्ट की, एक गोल्ड लाइन की होनी चाहिए। द पावर ऑफ हैबिट्स, योर की टू सक्सेस। आपकी जो आदतें हैं आपकी कामयाबी की चाबी हैं दोस्तों। अगर आपने गलत आदतें हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और उन हैबिट्स को जिस लीडर ने चेंज किया, सक्सेसफुल लीडर्स की कॉपी अगर आपने कर लिया, हैबिट्स, उनके हैबिट्स की कॉपी कर ली, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत से लीडरों को मैं अपने साथ 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना में रह के अपनी आदत उनको देने की कोशिश करता हूं। मैं क्या खाता हूं, कैसे खाता हूं, कितना सोता हूं, कितना काम करता हूं, कितने प्लान दिखाता हूं, कैसे कपड़े पहनता हूं, ये सारी चीजें रुक रुक के मैं एक एक लीडर के साथ मैं काम करता हूं। इसलिए दोस्तों, आज ट्रिपल एस में कम से कम 500 अरविंद पांडे तैयार हो गए हैं। मैं कंपनी को इस पैनल के माध्यम से मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले 1 से 2 साल में कम से कम 500 गोल्ड लाइन ट्रिपल एस से निकल के आने वाले हैं। 500 एके पांडे बनेंगे, 500 डायरेक्टर बनेंगे। ऐसी मैंने प्लानिंग की है, क्योंकि मैं लोगों की आदतें बदलने पे काम कर रहा हूं। और हम लाख मोटिवेट करें, अगर हम लोगों की हैबिट्स को चेंज नहीं करा पाते हैं तो हम सक्सेस नहीं होते हैं। हैबिट्स आर रूटीन ऑफ बिहेवियर रिपीटेड रेगुलरली ऑफन subsequently they shape our daily action and overall lifestyle.
कल्पना करें कि आपके पास एक चीज है जो आपको हर दिन आपके लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। आदतें ऐसी ही होती हैं। इन सेल्स द राइट हैबिट कैन स्काई रॉकेट योर परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्म योर कैरियर। दोस्तों ये चीज नोट कर लो, सेल्स की दुनिया में सही आदतें आपके बिजनेस को, आपके सेल्स को स्काई रॉकेट लेके जाएंगी और आपकी परफॉर्मेंस को स्काई रॉकेट लेके जाएंगी एंड ट्रांसफॉर्म योर कैरियर। आपका कैरियर बदल देंगी। क्या? आपकी आदतें। आदतों के ऊपर आपको काम करना है दोस्तों। जब तक हम आदत नहीं बदलेंगे, हमारी टीम वही आदतें नहीं पकड़ेगी, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं आदत करूंगा। The core of being a great leader is building successful habit, hardcore habit. Hardcore leader मैं कई बार हमारी एलडीपीज में मैं सिखाता हूं कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको हार्डकोर लीडर बनना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरी हार्डकोर लीडर की हैबिट्स हम सिखाते हैं। हैबिट्स आर द इनविजिबल फोर्सेस दैट शेप आवर लाइव्स। आदतें एक ऐसी अदृश्य शक्ति हैं जो आपके जीवन को शेप देती हैं। इसलिए आदतों के ऊपर दोस्तों आज हम बात करेंगे। टियान्स बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हैबिट ऑफ अटेंडिंग ऑल टियान्स मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार प्रायोरिटी बेस, ये अपनी आदत बना लो। खाना नहीं खाऊंगा लेकिन जो भी जूम पे मीटिंग होगी सुनूंगा, जो भी कंपनी का कोई सेमिनार होगा खुद जाऊंगा, टीम को ले जाऊंगा। और इसमें दोस्तों मैंने एक चीज लिखा है, प्रायोरिटी बेस। उस दिन आपके घर में किसी की छठी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की मैरिज हो सकती है, किसी का एंगेजमेंट हो सकता है, कोई घर में फंक्शन हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है टियान्स के मीटिंग सेमिनार को। और ट्रिपल एस के जितने हार्डकोर लीडर हैं दोस्तों, सभी इस ट्रेनिंग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और फैमिली फंक्शन, फैमिली रिलेटिव्स को अदर फंक्शन, मतलब उनको वो प्रायोरिटी नहीं है जो टियान्स के सेमिनार को प्रायोरिटी है। मैं खुद अगर मैंने कोई भी मीटिंग कमिटेड हूं तो मैं कोई भी रिश्तेदारी में शादी ब्याह कुछ भी पड़े, डेथ भी हो जाए, मैं उधर केयर नहीं करता हूं। मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को फोकस करता हूं बिकॉज ऑफ आई एम हार्ड कोर लीडर। अगर हार्ड कोर लीडर आपको बनना है, एक आर्मी का आप ऑफिसर देखो, एक आर्मी का एक जवान देखो दोस्तों, क्या वो छोटी छोटी छुट्टियां ले करके बर्थडे, छठी, तेरही, बरही मनाने घर जाता है? नहीं जाता है। अगर वो बंदा 50,000, 40,000, 80,000, 1 लाख की नौकरी में इतना सीरियस है तो आप तो करोड़ों के बिजनेस में है दोस्तों। आपको कितना सीरियस और कितनी प्रायोरिटी से इन मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करने की आदत बनानी है। मैं कहीं भी रहता हूं, शाम के 7 बजे की जूम मीटिंग में मैं जुड़ जाता हूं और ट्रिपल एस के लगभग 800,000 लीडर जुड़ जाते हैं रोज। वो 800,000 लोग जुड़ रहे हैं जिनको अपनी लाइफ को बनाना है, जिनको अपनी हैबिट्स को डालना है। 7 बजता है, मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है कि 7 बज गया है, अभी मीटिंग का टाइम हो गया है, मेरे को मीटिंग में जाना है। तो ये मेरी आदत बन चुकी है। दिस इज नॉट, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आदत है, मेरी हैबिट है दोस्तों कि हम सभी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। आज तक टियान्स ने कोई ऐसी सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा जिसमें AK पांडे ना गए हों। आज तक इंटरनेशनली कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं होगा, कोई भी कन्वेंशन जिसमें मैं ना गया हूं। क्योंकि मैंने जिस दिन से 2007 से ज्वाइनिंग की है, फर्स्ट टूर 2008 में अटेंड किया और आज तक 100 आउट ऑफ 100 मैंने इंटरनेशनल टूर्स अचीव किए हैं। 100 आउट ऑफ 100, नॉट मिसिंग इवन ए सिंगल टूर इन माय करियर। पूरे करियर में एक भी सिंगल टूर मैंने मिस नहीं किया क्योंकि आई एम हार्ड कोर लीडर। और अगर आप हार्ड कोर लीडर हैं दोस्तों तो टियान्स की हर चीज आप हासिल कर जाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको कहीं से वंचित नहीं कर सकती। आप एक अचीवर के रूप में हर जगह चमकते रहोगे। तो हमें पहली आदत डालनी है, हैबिट ऑफ अटेंडिंग ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स, प्रायोरिटी बेस। दूसरी आदत क्या डालनी है? हम फालतू के टाइम में अपना टाइम खराब करते हैं। हैबिट ऑफ रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक डेली एंड वॉच मोटिवेशनल वीडियोस डेली। आप रील्स मत देखो। जितने भी पैनल पे जुड़े हैं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, डोंट सी द रील्स।
रील्स मत देखो, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखो, टियांस के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज लो, टियांस की पॉलिसीज क्या चल रही हैं उसकी नॉलेज लो, उसके वीडियो देखो। जो भी आपका टाइम बचता है, ये डेली की हैबिट बना लो कि हमको किताब पढ़नी है रोज आधा घंटा या 1 घंटा, और डेली 2-3 मोटिवेशनल वीडियोस में जब तक नहीं सुनता देखता हूं, मैं सोता नहीं हूं। पर डे का मेरी हैबिट है, जैसे मैं बेड पे जाऊंगा, 1-2 मोटिवेशनल स्पीकर्स को उठाऊंगा, सुनूंगा, और सोते सुनते सुनते मैं सो जाता हूं। ये मेरी हैबिट्स है। और जितने लीडर मेरे साथ रहते हैं, रुकते हैं, रूम में रुकते हैं, हमारे होटल में शेयरिंग करते हैं, उनको सबको पता है, और सारे लोग वही करते हैं दोस्तों। तो आपको भी ये हैबिट बनानी है, रोज मोटिवेशनल वीडियोस देखने की और रोज बुक्स पढ़ने की। तीसरी, ऑलवेज हैबिट ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। आदत बना लो कि जब भी हम मार्केट में निकलेंगे, हम एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क बिजनेस में हैं, और जब भी हम मार्केट में निकलेंगे तो हमारा ड्रेसिंग सेंस शुड बी प्रॉपर। ये नहीं टी शर्ट पहन ली, जीन्स पहन ली, चप्पल पहन ली, जाके टियांस बिजनेस की बात कर रहे हो, फिनिश, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप पहले घर से जब भी निकलो, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में निकलो। ये आप अपनी हैबिट बना लो, ये आप अपनी आदत बना लो कि जब भी मैं घर से निकलूंगा, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में रहूंगा, शूज प्रॉपर पॉलिश्ड होंगे। जरूरी नहीं कि नए खरीदो, जरूरी नहीं कि महंगे खरीदो, जरूरी नहीं कि रोज खरीदो, जो है उसको मेंटेन करके आप पहन सकते हैं दोस्तों। ये अपनी आदत बना लो। तीसरी आदत, हैबिट ऑफ शोइंग 3 प्लान डेली। टियांस बिजनेस में जो कोर लीडरशिप में लिखा है, हर लीडर को 3 प्लान रोज दिखाने की आदत बना लेनी पड़ेगी। वो अपनी डाउनलाइन के साथ दिखाए, खुद को दिखाए, टीम से दिखवाए, लेकिन जब तक आप 3 लोगों से डिस्कशन डेली ना करो, तब तक बोल दो मेरा डाइजेशन खराब है। मैं तो बोलता हूं कि मेरी या तो 3 मीटिंग करवाओ, नहीं तो डाइजीन खिलाओ। अगर डाइजीन दे रहे हो तो मैं बिना मीटिंग किए सो सकता हूँ, नहीं तो बिना 3 मीटिंग किए मेरा खाना नहीं पचेगा। ये आदत आपको भी बनानी पड़ेगी दोस्त। अगर आपको करोड़ों करोड़ कमाना है, तो ये आदतें आपको अपने अंदर डालनी पड़ेंगी। हाँ, ये काम कठिन है, आदतें बदलना कठिन है। सारे लोग जितने पैनल पे जुड़े हैं, हाँ हाँ करेंगे, सोच रहे होंगे कि यस, कल से, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट, कल से मैं स्टार्ट करूंगा। बट जब करना होता है तो फिर पीछे आ जाते हैं। यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लीडर का, यही फर्क है कामयाब और फेल्योर लीडर का। कामयाब लीडर जो चीजें सुनता है वो कल से एक्शन में डाल देता है, और फेल्योर लीडर सुन के इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। और एक बात दोस्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आपने टियांस बिजनेस को हल्के में लिया, तो आपके लिए ये बहुत हल्का है। और जैसे मैंने, हजारों दुनिया के लीडरों ने इसको बहुत अहमियत दी है, उनके लिए बहुत अहमियत का बिजनेस है, वही लोग करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। आज दोस्तों मेरे घर में करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए हर साल आता है। एवरी ईयर 3-4-5 करोड़ आता है। तो इतना बड़ा इनकम के लिए अगर 3 प्लान रोज दिखाना हो, तो क्या ये कठिन काम है? बिल्कुल कठिन नहीं है। ये आपको भी अपनी आदत बनानी है, और आप भी बहुत जल्दी करोड़ों की इनकम में चले जाओगे फ्रेंड्स। हैबिट ऑफ डिस्कसिंग एवरीथिंग विद अपलाइन। दोस्तों, इस बिजनेस की जो सबसे बुराई है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अपलाइन डाउनलाइन का तालमेल। ऐसे में दोनों लोगों को, अपलाइन को भी डाउनलाइन से तालमेल बनाने की जरूरत है, और डाउनलाइन को भी अपलाइन से तालमेल बनाने की जरूरत है। अगर आपके पास ईगो है, अगर आपके पास घमंड है, अगर आपके पास मेरा तो डाउनलाइन कम एज का है, मेरा डाउनलाइन पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा डाउनलाइन बेवकूफ है, या मेरा अपलाइन मुझसे अनपढ़ है, ये सारी चीजें आपको भूलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 99% लोग बड़ा बिजनेस केवल इसलिए नहीं कर पाते कि उनका अपलाइन और डाउनलाइन का तालमेल नहीं है। मैंने जो सिस्टम बनाया है, सभी लीडरों की इसीलिए कोर टीम बनाई है। अपलाइन डाउनलाइन का एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा माहौल बनाया है, और जहां माहौल तालमेल का है, अच्छा है, वहां बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है दोस्तों। तो आज से सभी लोग अपने को चेंज करना है। अपलाइन डाउनलाइन की जो भी छोटी मोटी बड़ी बातें हैं, उसको भूल करके हैबिट ऑफ डिस्कसिंग एवरीथिंग विद अपलाइन एंड कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग टू योर डाउनलाइन। डाउनलाइन से पूछो कैसे, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ
कमाओ पैसे, इतना अद्भुत बिजनेस है दोस्तों। तो आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि अपने अपलाइन से मैं बात करके न्यू इंफॉर्मेशंस लूं और अपने डाउनलाइन को बताऊं। हैबिट ऑफ फॉलो अप। इस बिजनेस में दोस्तों प्लान दिखाना बड़ी चीज नहीं है, मेहनत करना बड़ी चीज नहीं है। इस बिजनेस में आप खूब पैदल चल रहे हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। इस बिजनेस में आपका फॉलोअप कैसा है। हमने अपने नेटवर्क में 5-5 साल लोगों को फॉलोअप किया है और वो लोग 5 साल बाद टियांस बिजनेस में आए हैं। फॉलोअप इतनी मजबूत चीज है, हमेशा फॉलोअप को अपना स्ट्रांग करिए। जिसको प्लान दिखा के आओ उसको 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करो, उसका 24 घंटे के अंदर फीडबैक लो कि सर मैं कल आपके पास आया था, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, कितना अद्भुत प्लान है, सर मैं चाहता हूं हम लोग मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा बिजनेस कितनी आसानी से होके खड़ा हो जाता है। तो उसको फॉलो अप करिए, उसको रिवाइंड कराते रहिए, रिमाइंड कराते रहिए, रिमाइंड कराते रहिए, और वो बंदा एक दिन आपके बिजनेस में आ जाएगा। अगर आपकी फॉलो अप की हैबिट नहीं है, बहुत से लीडर छोटे रैंक के जितने भी लीडर्स होते हैं, 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार, अपने अपलाइन से प्लान दिखवा दिया, मीटिंग करा दिया, डेमो कर दिया, और वो बंदा फॉलो अप नहीं किया, जिसकी वजह से अपलाइन का भी टाइम और मेहनत खराब चला गया और उनका भी टाइम और मेहनत खराब चला गया। इसलिए ऐसा नहीं करना है। हर लीडर को, ये बिजनेस अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन का कतई बिजनेस नहीं है। अपलाइन दोस्तों एक बैसाखी है। जिस दिन आप उस बैसाखी को फेंक देंगे, चाहे वो बैसाखी सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे लकड़ी की हो, बैसाखी बैसाखी होती है दोस्तों। आप जिस दिन उस बैसाखी को फेंक करके अपने पैरों पे चलना शुरू करेंगे, अपनी आदतों को चेंज करेंगे, खुद फॉलो अप शुरू करेंगे, खुद प्लान दिखाना शुरू करेंगे, खुद डेमो करना शुरू करेंगे, खुद सारी चीजें उसको सही सही इंफॉर्मेशन अपनी टीम को देंगे, ट्रेंड करेंगे, अपने आप आपका बिजनेस ग्रो करेगा दोस्तों। हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, ये हमारी टीम में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत स्ट्रांग रिसोर्स है। हमारी टीम में कई लीडर ऐसे हैं, यंगस्टर्स खास करके, जिन्होंने फेसबुक से और ये व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से तमाम लोगों को बिजनेस दिखाया, बताया, और वो लोग आज इस बिजनेस में आए हैं और बहुत कामयाब है सर, बहुत जबरदस्त सक्सेस उनको मिली है। तो ये हैबिट आपको बनानी है कि अपनी फेसबुक पे डेली टियांस के पोस्ट करो, अपने व्हाट्सएप पे डेली टियांस के पोस्ट करो, जो एक्टिविटीज हो रही है उसको पोस्ट करते जाओ, पोस्ट करते जाओ। कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो टियांस के प्रोडक्ट पोस्ट कर दिया, कभी हेयर ऑयल पोस्ट कर दिया, कभी वर्जिन कोकोनट ऑयल पोस्ट कर दिया, कभी अपना पेस्ट पोस्ट कर दिया, कभी अपना मल्टीविटामिन पोस्ट कर दिया, कभी प्रोटीन पोस्ट कर दिया, कभी बीसीएम के बारे में पोस्ट कर दिया। डेली पोस्ट करो। ये सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है कि दोस्तों, लीडर लोग गलती क्या करते हैं, अपने जानने वालों में बिजनेस करते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड दायरा होता है। बट सोशल मीडिया अनलिमिटेड दायरा है, जितना मर्जी आप बिजनेस करो, इसमें करके आप सक्सेस हो जाएंगे और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर लेंगे। हैबिट ऑफ गोल सेटिंग, ये हमारे पूरी टीम में एवरी मंथ मैं करता हूं। हर लीडर के फर्स्ट डे दिमाग में गोल डालता हूं कि तुम्हें कहां जाना है, कितना बिजनेस करना है। हमारे जितने भी गोल्ड लाइंस हैं, हमारे जितने भी 8 स्टार्स हैं, हमारे जितने भी 7 स्टार हैं, सबकी गोल सेटिंग होती है और सारे लीडरों के माध्यम से होती है। और मैं खुद महीने में एक बार गोल सेटिंग करता हूं, और ये आपको भी हैबिट बनानी पड़ेगी। स्पेशली स्टार 8 एंड एबव लीडर्स जितने भी हैं, उनको अपनी टीम को बैठा करके महीने के फर्स्ट डे में गोल सेटिंग डे, हमारे पूरे ट्रिपल एस में गोल सेटिंग डे है, वो है 29 तारीख। हर महीने की 29 तारीख को मैं भी गोल सेटिंग करता हूं, पूरी टीम अपने अपने पैनल्स पे गोल सेटिंग करती है। लगभग 50 से ज्यादा जूम पैनल मेरी डाउनलाइन में चलते हैं, और उस 50 पैनल में 29 तारीख को गोल सेटिंग होती है। दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी। अब पूरे सारे लोग एक ही बात करते हैं तो एक माहौल बनता है, तब जाके हम करोड़ों करोड़ों का बिजनेस कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये गोल सेटिंग की भी आपको आदत बनानी है। हर महीने गोल सेटिंग, डू गोल सेटिंग एवरी मंथ।
हैबिट ऑफ अपस्किलिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीडर बड़ी गलत फहमी में चले जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि मुझको सब आ गया है या अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। नो, आपको अपने स्किल को हमेशा बढ़ाते रहना है। अपनी नॉलेज, अपना कौशल्य, अपनी वाणी, अपना वक्तव्य, एक अच्छे वक्ता बनना है। और हमारी वोकाबुलरी कैसे स्ट्रांग होगी, अपनी अप स्किलिंग करनी है। इसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद, ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है दोस्तों। आपको हर हाल में सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, और उसकी आदत बना लो। जैसे मेरी आदत है, मैं डेली किसी एक स्पीकर को सुनता हूं, ये मेरी आदत है। केवल इसलिए है कि मेरा स्किल और डे बाय डे बड़ा होगा। मैं टाइम टू टाइम तमाम नेशनल इंटरनेशनल, अभी हमने एक ऐसे बंदे से अपनी टीम को स्किल दिलवाया जो 7 टाइम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर था। अभी लास्ट मंथ हमने वो प्रोग्राम कराया था, करीब पूरे इंडिया से 600 लोग थे। अभी इसी महीने 15 तारीख को हमारा स्किल को बढ़ाने का, एक मैंने नेशनल स्पीकर है हमारे ललित अरोड़ा जी, उनका मैंने प्रोग्राम लिया है कि हम अपनी पूरी टीम के स्किल को और बड़ा कैसे करें। इसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम ले रखा है संतोष नायर जी का, वो अपनी टीम का मैं कैसे स्किल बड़ा करूं, मैं उसमें पूरी ताकत लगाता हूं। कभी भी लीडर को ये नहीं मानना है कि मैं तो सीख गया हूं, मैं तो फुल हो गया हूं, मेरे को अब कोई जरूरत नहीं है। जिसने ये बोला उसी दिन से उसका बिजनेस फिनिश, समझ लो कि वहीं से वो दबना शुरू होगा, उसको आगे नहीं बढ़ना है। ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला है, हैबिट ऑफ अप स्किलिंग, हमेशा अपनी स्किल को बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एवरी डे, ये लीडर, सभी लीडर्स की आदत बन जानी चाहिए कि मैं जहां भी रहूं, जिससे भी बात करूं, मेरे 3 फीट के दायरे में जो भी आएगा उससे मैं टियान्स के बारे में प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, टियान्स के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंड्स, एक ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। वो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट ऐसी कि कहीं भी, मैं आपको बताऊं, मैं कहीं कपड़े की दुकान में गया, उसको भी बता दिया। मैं अभी रिसेंटली घर में सोफा लेने गया था, तो सोफा लेने गया था, जिनके यहाँ से मैंने परचेज किया, उनको मैं 11,000 के सप्लीमेंट दे के आया। उनको मैंने अपना आयुष दिया, अपना मल्टीविटामिन दिया, और अपना मैंने चिटोसन दिया, एफओएस दिया, सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा सर दे दो, और 3 महीने से हर महीने वो मेरे से परचेज करते हैं। और मैं गया काहे के लिए था? सोफा लेने के लिए। हैबिट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एवरी डे एवरीवेयर, हर दिन हर जगह आपको अपनी आदत बनानी है। मैंने आज तक कभी भी, मेरी 17 ईयर हो गया मेरी कैरियर टियान्स में, एवरी मंथ जो मैं अपनी मंथली परचेज डालता हूं, उससे ज्यादा मैं रिटेलिंग करता हूं। इसलिए कि मेरी हैबिट है हर जगह प्रोस्पेक्टिंग की। मैं जहां जाता हूं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, जो सामान मांगता दे आता हूं, अपनी आईडी पे क्लोज कराता हूं। हैबिट ऑफ ट्रेनिंग योर टीम, ये भी आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ सभी 7 स्टार 8 स्टार, लगभग 8 स्टार सभी लीडरों के पास अपना जूम पैनल है, और ये मोर देन 50 पैनल्स हैं हमारी टीम में। और ये रोज अपनी टीम को सिखाते हैं। सुबह 4 बजे से हमारे पैनल से स्टार्ट होते हैं, रात 11 बजे तक चलते हैं। मोर देन 50 पैनल्स पे केवल टीम को सिखाया जाता है हैबिट ऑफ ट्रेनिंग्स। कोई गांव में है, कोई इंटीरियर में है, कोई रूरल में है, अपने घर में बैठ करके ये ट्रेनिंग लेकर के, माइंड को स्ट्रांग करके बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, आगे चल के बहुत बड़ा लीडर बनेगा। तो दोस्तों, ये आपको आदत बनानी पड़ेगी कि हम कैसे अपनी टीम को ट्रेंड करें। हर महीने, हर हफ्ते आपके इवेंट्स होने चाहिए, हर हफ्ते ओपीपी होनी चाहिए, हर महीने सक्सेस सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसकी आदत बन जाए। मेरे को 15 दिन बीतता है, अगर 15 दिन में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरी ये आदत बन चुकी है, हर 10-15 दिन में बढ़िया एक इवेंट होना चाहिए। ये मेरी हैबिट बन चुकी है। हर रोज हम अपनी टीम को सिखा सके। कोरोना काल 2020 से आज तक मेरा पैनल एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे, 12 बजे ओपीपी होती है, शाम को 7 बजे एलडीपी एंड ईपीपी होती है,
पर डे एवरी डे विदाउट मिसिंग विदाउट नागा, ये हैबिट बन चुकी है। हमारी पूरी टीम की आदत बन गई है 7 बजे मीटिंग सुनने की। तो ये एक हैबिट, बहुत अच्छी हैबिट है जो लीडर को बहुत आगे ले चलती है। दोस्तों, दिमाग एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो खरपतवार नेगेटिव चीजें उसमें भर जाएंगी। इसलिए आपको रोज हैबिट डालना है गुड ट्रेनिंग की, हैबिट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। दोस्तों, ये व्यापार जो है, ये जो बिजनेस है, ये टोटल रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपको ऐसी आदत डालनी है कि आपकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी हो। अपने पूरे नेटवर्क में सबसे बड़ा विजेता वो है कि खुद झुक के भी अपनी टीम के साथ रिलेशन अच्छा बनाए। हमेशा क्षमा बड़न को चाहिए। इस बिजनेस में जितने भी अपलाइन हैं वो अपनी डाउनलाइन को क्षमा करके, एक्सक्यूज करके, उनकी गलतियों को एक्सक्यूज करके उनसे अच्छी रिलेशनशिप बनाने का ये व्यापार है। दोस्तों, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो यू कैन नॉट बिल्ड ए बिग नेटवर्क, और बड़ी इनकम, बड़ी अर्निंग, बड़ा अचीवमेंट आपसे दूर भाग जाएगा अगर आपके रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। हमेशा रिलेशनशिप बहुत अच्छी रखनी है, इसकी आदत बनाओ आप। धीरे धीरे करके बनता है, एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। दोस्तों, हैबिट ऑफ मेंटेनिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। दोस्तों, हर इंसान के दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की चीजें रन करती हैं। तो आपको क्या आदत डालनी है कि जो नेगेटिव चीज आ रही है ना, उसको लात मार के हमें बाहर भगाना है, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हमें सोचना है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, उसको अपने विचारों में डालना है, अपने पूरे इनवर्स में उसको हमें छोड़ना है। हमेशा पॉजिटिव चीजें आप विचार करो, पॉजिटिव रिलीज करो, पॉजिटिव विचार करो, पॉजिटिव रिलीज करो। दोस्तों, ये बिजनेस केवल 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 पॉजिटिव माइंडसेट का बिजनेस है। हमेशा एक आदत बनाओ कि मेरा माइंडसेट कोई भी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट ना करे। जहां भी नेगेटिव वार्ता हो उसको तुरंत दबाने की कोशिश करो। जहां भी नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रहे हो उसको आप हमेशा मारने की कोशिश करो। हैबिट ऑफ मेंटेनिंग ए पॉजिटिव माइंडसेट, ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है। और बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव रह करके पड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हो तो तरीका बदल दो। जो आपके टारगेट्स हैं, जो आप अचीवमेंट आज आपने सोच रखा है, अगर वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो केवल तरीका बदलो, इरादा बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ट्रांस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड है। आज की डेट में इसकी कोई जोड़ नहीं है। केवल आपको अपना तरीका बदलना है, आपको अपना आदतें बदलनी है। कहते हैं या कभी कभी करते हैं, आपकी टीम सिर्फ वही करेगी जो आप लगातार करते हैं। जो आपकी हैबिट्स होंगी, आपकी मीटिंग अटेंड करने की हैबिट होगी तो टीम की भी होगी, आपको कपड़े अच्छे पहनने की हैबिट होगी तो टीम को भी होगी, आपको दोस्तों बुक्स पढ़ने की आदत होगी तो टीम को भी होगी, आपको 3 प्रोस्पेक्ट से रोज मिलने की आदत होगी तो टीम को भी होगी। बहुत से लीडर कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो उनकी टीम भी नहीं करती है। लीडर को हमेशा परफॉर्मर होना चाहिए। दोस्तों, इस एक एग्जांपल मैं लूंगा, ये बिजनेस सेम लाइक ए क्रिकेट मैच का खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी पिच पे जितना स्कोर बनाता है तो उसी का नाम होता है। उसके ना तो गुरु का नाम होता है, ना उसके कोच का नाम होता है, ना टीम में किसी और का नाम होता है, ना उसके मम्मी पापा का नाम होता है। केवल विराट ने रन बनाए, विराट 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 का नाम होता है। धोनी ने रन बनाए, धोनी 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 का नाम होगा। इसलिए ये बिजनेस ना आपके अपलाइन का है। अगर अपलाइन से 1 लाख कंप्लेन है, भूल जाओ कि मेरा कोई अपलाइन नहीं है। इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट लीडरशिप का बिजनेस है। दोस्तों, आप खुद अपनी आदतों को बदलना शुरू करिए। ये बिजनेस ना तो आपकी अपलाइन खराब कर सकती है, ना आपकी अपलाइन आपको बना सकती है। अगर मैं किसी भी को बना नहीं सकता, मैं इतना
मैंने अचीव किया है, लेकिन हम अगर किसी को कुछ नहीं बना सकते, मेरी टीम में जिन जिन लोगों ने अपनी आदतों को बदला है वो अपने आप बन गए। आज कुशवाहा जी देखिए, मेरे आने के 7 साल के बाद कुशवाहा जी मिले, आज वो भी डायरेक्टर है, मैं भी डायरेक्टर हूं। और इस बिजनेस में एक पेशेंस की बात मैं बताऊंगा। बहुत से लीडर घबरा जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को 2007 में स्टार्ट किया था, तो 2007, 8, 9 में जितने लोगों को भी मैंने ज्वाइन कराया था वो सब आज इस बिजनेस में कोई नहीं है। 2010 में हमको कानपुर की टीम मिली, प्रतिष्ठा जी मिली, अर्जुन जी मिले। 2010 में 4 साल की पूरी मेहनत जीरो हो गई, और 4 साल के बाद कानपुर टीम मिली। आज 1.5-2 करोड़ का बिजनेस हर महीने होता है। उसके भी 4 साल के बाद फिर जब मैं और सर्चिंग और सर्चिंग और सर्चिंग हुआ, तो मेरी ज्वाइनिंग के 7 साल के बाद अजय कुशवाहा जी मिले, जो कि आज डायरेक्टर हैं और 2-3 करोड़ का बिजनेस हर महीने देते हैं। उसके बाद मैं और आगे चला और आगे चला। ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद हमको सफी मोहम्मद मिले, नो सॉरी, कामनी सिंह मिली, और कामनी सिंह की टीम आज करोड़ों का बिजनेस दे रही है एवरी मंथ। और दोस्तों हमारे जुड़ने के 10 साल के बाद सफी मोहम्मद मिले, जो आज गोल्ड लाइन है, उनके नीचे गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, स्टार 8, करोड़ों का बिजनेस हर महीने दे रहे हैं। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग के 10 साल के बाद वो मिले हैं। और अभी हमारी ज्वाइनिंग के 17 साल बाद अब जो लीडर मिल रहे हैं वो इतिहास बनाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, इस दुनिया में, इस पूरे इंडिया में हजारों लोग ऐसे घूम रहे हैं कि जिनको आप जा करके टिहांस अपॉर्चुनिटी बताओ और वो लोग गोल्ड लाइन डायरेक्टर बनेंगे और आप एचडीडी जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है। सफलता कभी खरीदी नहीं जा सकती, सफलता तो किराए पे मिलती है, और लीडर को ये किराया हर दिन चुकाना पड़ता है। अगर आपको एक्सट्रीम ऊंचाई पे जाना है तो पर डे पर डे पर डे आप इस किराया को चुकाते रहो, मेहनत करते रहो, और एक ना एक दिन दोस्तों वो दिन आएगा कि दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। दोस्तों आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब मरते हैं ये आपका दोष है। दोस्तों जितने लोगों को भी इस पैनल पे मैं हर बार, हर मीटिंग, हर मंच में कहता हूं, आज जितने भी लोग हमारे साथ पैनल पे, फेसबुक पे, जूम पे, जहां पे भी जुड़े हैं, आज के बाद आप कभी भी ईश्वर को ये मत कहना कि भगवान हमें कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि जिससे मैं करोड़पति और अरबपति बन सकूं। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों ना पैसे की जरूरत है, ना पर्सनालिटी की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, ना सुंदरता की जरूरत है। हर तरह के लोग कामयाब हुए हैं। ना कोई भाषा की जरूरत है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं टियान्स बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। अरे दुनिया में जाके देखो, हजारों कंट्री, सैकड़ों कंट्री के लाखों लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते और सब बिजनेस कर रहे हैं। तो आपकी सब चीज इस बिजनेस में कुछ मायने नहीं रखता दोस्तों। आज के बाद आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने ऐसी अपॉर्चुनिटी सुनने और देखने का मौका दिया है। अपना एफर्ट डालो, सीखो, अपने अपलाइन से सीखो, सिस्टम में आकर के सीखो। जिसको कोई प्रॉब्लम है, मेरा दोनों टाइम जूम पैनल चलता है, कोई भी ओपन फॉर ऑल है। सब लोग उस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को सीख सकते हैं। कैसे हम फास्ट अचीवमेंट लें उसको कर सकते हैं। इस साल पूरी मेरी टीम में मैं थैंक्स बोलूंगा अपने ऑल गोल्ड लाइन एंड स्टार गोल्ड लाइन लीडर को, जो हर महीने एक्टिव रहते हैं दोस्तों, जिनकी वजह से मेरा एक्टिव डायरेक्टरशिप मेंटेन रहता है। मैं थैंक्स बोलूंगा अपने सभी कोर लीडर्स को, जिन्होंने, सभी लोगों ने इतना कमिटमेंट करके इस साल ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, 5-5, 6-6 गोल्ड लाइन एक साल में। मेरे को लगता है करीब 40+ स्टार 8 निकले हैं हमारे इस साल में। रियली अमेजिंग, वंडरफुल बिजनेस और वंडरफुल अचीवमेंट दिया है इस एजुकेशन सिस्टम ने, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है दोस्तों। लूजर्स क्विट व्हेन दे फेल, विनर्स फेल अंटिल दे सक्सेस, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा, जैसे मैंने बैठाया था
कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं एचडी नहीं जाता, तब तक मैं चलता जा रहा हूं दोस्तों। 17 साल बीत गए, मुझको पता नहीं कि कैसे 17 साल बीत गए। लेट्स रोड टुगेदर टू मेक टियान इंडिया नंबर 1 दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल गो एचडी। थैंक यू। नेक्स्ट शिवाजी, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Yes, sir. Great, sir. Great, sir. What you are excellent presentation, sir. Today people are learned how they have to change themselves. Okay, sir. Pandey sir explained very extraordinarily how you have to change yourself. Along with that, not only you have to change yourself, you have to change your habit also. So these are Yes, the some key points. If you look at that way, how the people lives are changing. Okay. So if you want to achieve something, you have to change yourself as well as you have to change your habits. The habits, once you started to changing, everything will change. So next is, if you want, if if any person is example, yes, he is the example. He said, if I achieve, if I am Mr. Pandey, if I achieve, you can also achieve. I am same like you are like you. I am the normal human being, which I started my career with bicycle, and I am going by now BMW. That is what. So you have to you have to take that as a important keynote of your life. So what he says successful leaders you have to copy. If somebody is achieved, you have to copy the same. So if you do that same thing, you have to focus entire thing properly. So same way, sales, if you target your sales, that if you put effort, if you perform well, you will be achieved like sky at the rocket. Okay. So if you started to performing, your sales will be skyrocket fast. Okay. Dedication and persistency. So whatever it is there in your family also, something has happened, some death has